Please don't forget to subscribe. Hi students, today we will discuss Unit 2 Humor. Reading B Excuses, poem Excuses by Gareth Owen. I am going to read it now, then after I will explain it to you. Listen carefully, I am reading the poem. Okay? Okay, sir. Yes. Late again, banking shop. What's the excuse this time? Not my fault, sir. Whose fault is it then? Grandma's, sir. Grandma's? What did she do? She died, sir. Dead? She's seriously dead. Alright, sir. That's my four grandmothers this term, banking shop. All on PE days. I know. It's very upsetting, sir. How many grandmas have you got, banking shop? None, sir. You said you had four. All dead, sir. And what about yesterday, banking shop? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist died. No, sir. My teeth, sir. You missed the math test, banking shop. I had been looking forward to it, sir. Right line up for P. Can't, sir. There is no such word as can't, banking shop. No kid, sir. Where is it? Home, sir. What is it doing at home? Not iron, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? Dead, sir. This poem is in simple words. You can read it, understand it easily. Have you got any idea what's going on this? What's going on these lines? Have you got any idea? It is a child named Benkinsop. It's late. You have noticed that there is no gender discrimination of Benkinsop. Either he is a girl child or a boy child. इस पोयम में कहीं भी बेंकिंसॉप को वो गर्ल है या बॉय है इस बात का उल्लेख पोयम में नहीं किया गया है। अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो शायद वो बॉय चाइल्ड है, लेकिन पोयम में उसके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये अवलोकन का विषय है, थ्योरी टू पॉइंट आउट। ओके, what's going on there? Yes. The title itself says something about this poem. Excuses, excuses, excuses. What is this excuses? What do you mean by excuse? बहाना। समझते हैं। Excuse. When it is used as a noun, it means that a reason that you give in order to explain your behavior. Ultimately, you say it बहाना। जब तुम उसे एक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल करते हो तो वो क्या होता है? बहाना। It is also used as a verb. It used as verb too. When it is used as a verb, what that means? To forgive somebody for something he has done wrong, that is not very serious. छोटी मोटी गलती के लिए माफ करने के को भी एक्सक्यूज कहा जाता है। Yes, sir. जैसे बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा माफ कीजिएगा सर, तो वहां पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। और जब मर्द उनसे बोलता है व्हाट इज योर एक्सक्यूज नाउ, वहां पर उसका इस्तेमाल एक नाउन के ऊपर तरीके से होता है, बहाना। अच्छा, अब तुम्हारा क्या बहाना है? तो यहां पर इस पोयम में गैरेथ ओवेन जो है वो एक सिचुएशन बता रहे हैं कि एक देयर इज अ बॉय हु हैज कम लेट
एट द स्कूल। एक बच्चा है बैंकिंग शॉप नाम का, जो क्या हुआ है, अभी स्कूल में थोड़ा लेट आया है। आया, yes. And what is the teacher is asking to him? What's the excuse this time? What teacher is asking with him? What's the excuse this time? The Yes, word this time tells us that the boy is usually doing these things. He is practiced to come late at the school. इस शब्द से तुमको व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, आज तुम्हारा क्या बहाना है। क्या पूछ रहा है वो टीचर? आज तुम्हारा क्या बहाना है, क्या बहाना? आज तुम्हारा क्या बहाना है। इसका मतलब ये बता रहा है, ये जो पूरी लाइन है ये आपको समझा रही है कि उस बच्चे की आदत है कि वो लेट आता है, और जब भी वो लेट आता है वो कोई ना कोई बहाना जरूर बनाता है। बनाता। तो इसीलिए टीचर उससे क्या पूछ रहे हैं? लेट अगेन बैंकिंग शॉप, आज फिर लेट आए हो। लेट अगेन बोल रहा है, यू आर लेट नहीं बोल रहा है, लेट अगेन मतलब आज फिर से लेट आए हो। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, और आज तुम्हारा क्या बहाना है। एंड as the child is replying, you are seeing that he is outwitting his teacher. वो अपने टीचर को बहुत आसान तरीके से घुमा रहा है अपनी चतुराई से। टीचर जानता है, टीचर knows that the banking shop is lying, he is making excuse, he is telling false, and he want to point out that he want to grab him about this faults. वो चाहते हैं कि वो उसके गलतियों को पकड़ ले और उसको चमकाए। Teacher knows that the student is lying. This boy is or this girl is lying. But the witty thing is that उस बच्चे की चतुराई देखिए कि वो कैसे अपने टीचर को अपने बातों के जाल में फंसा रहा है। Not my fault, sir. What that fault? Fault का मतलब गलती। गलती। Fault is a noun. उसकी कोई गलती। Noun. लेकिन क्या बोल रहा? Not my fault, sir. मेरी गलती नहीं है सर। Then teacher is asking again, whose fault is it then? तो किसकी गलती है भैया? तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? And what the child is replying? Grandma sir. मेरी दादी अम्मा की गलती है सर, बोल रहा है। My grandma sir. Grandma? Yes. What did she do? तुम्हारी दादी की उन्होंने क्या किया भाई? What did she do? उन्होंने क्या किया? क्या किया? Died sir. What she replied? She died sir. वो मर गई। Died? She is seriously dead. All right sir. She is seriously dead. All right sir. Seriously dead मतलब बिल्कुल, मैं एकदम यहाँ पे सीरियसली का मतलब क्या है? सीरियस होकर। मैं एकदम सीरियस होकर बोल रहा हूँ, मतलब मैं एकदम गंभीरता पूर्वक बोल रहा हूँ सर, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ रिडिकुलस थिंग। आई एम नॉट मॉकिंग, आई एम वेरी सीरियस सर। शी इज डेड। ऑलराइट सर। वो बिल्कुल मर गई है सर, एकदम सही तरीके से मर गई है। दैट बहुत मजेदार चीज यहाँ पे हो रही है। Just pay attention to the next line. Something witty is going on there. क्या हो रहा है देखिए। Let's make 4 grandmothers this term banking shop. Teacher क्या बोल रहे हैं? What the teacher is saying to the banking shop? That makes 4 grandmothers this term banking shop. Banking shop इस this term मतलब इस बारी को मिला के अब तुम्हारी 4 grandmothers हो गई। ये लाइन आपको क्या बताता है कि बच्चा पहले भी 3 बार अपनी दादी को मार चुका है, मतलब पहले भी 3 बार वो एक्सक्यूज दे चुका है, ये बहाना बना चुका है।
बना चुका है। बाय। तो टीचर उसको ये क्या पूछ रहे हैं? दैट मेक्स फ्रॉम 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म। इस बार को मिलाकर तुम्हारी 4 ग्रैंड मदर्स हो गई। ऑल ऑन पी डेज। पी डेज, पी मतलब फिजिकल एजुकेशन डेज, मतलब पीटी का दिन होगा जिस दिन व्यायाम होता है। पी डेज तुम्हारे स्कूल में भी हम करवाते हैं ना, हमारे स्कूल में भी। हाँ सर। शनिवार के शनिवार फिजिकल एजुकेशन देते हैं तिवारी सर। एक सेशन होता है, एक दिन होता है, और उस दिन उसकी दादी अम्मा बिल्कुल बीमार होती है, मतलब वो कुछ ना कुछ बहाना करके फिजिकल एजुकेशन के जो पी डे होता है उस दिन तो वो बहाना मार के स्कूल से बंक मारता ही मारता है। तो इसीलिए सो टीचर क्या बोला, दैट मींस 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म। इस टर्म को मिलाकर तुम्हारी 4 दादी अम्मा हो गई है। और ऑल ऑन पी डे, और सभी पी डे के दिन ही होती है। तुम्हारी 4 दादी अम्मा मर चुकी हैं और सारे के सारी पी डेज के दिन। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। देन व्हाट द बॉय इज रिप्लाइंग, आई नो, मैं जानता हूं, इट्स वेरी अपसेटिंग सर, ये बड़ी दुख की बात है कि पी डे के दिन ही मेरी दादियां मर जाया करती है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। अब ऐसा बोला नहीं है, लेकिन उसका भाव यही है ना, इट्स वेरी अपसेटिंग सर। हाँ हाँ, अब पी डे के दिन ही मेरी दादियां मरती है तो क्या करूं वाला भाव है। हाउ मेनी ग्रैंडमास हैव यू गॉट बैंकिंग शॉप? क्या पूछ रहे हैं सर टीचर उसके? हाउ मेनी ग्रैंडमास हैव यू गॉट बैंकिंग शॉप? कितनी दादियां हैं तुम्हारे पास बैंकिंग शॉप? That witty child is replying, none sir, एक भी नहीं है सर। You said you had 4, तो तुमने बोला तुम्हारे पास 4 है। Yes. Then again that boy is replying, all dead sir, सब मर गई सर, है कहाँ मेरे पास? आपने पूछा है कि तुम्हारे पास कितनी दादियां हैं, तुम्हें बोला नहीं एक भी नहीं है। सर बोले तुम्हारे पास, तुम बोल रहे 4 है, सब तो मर गई सर, अब तो मेरे पास एक भी नहीं है। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बैंकिंग शॉप? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी अब एक भी दादी नहीं है, दादियां मर गई। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बैंकिंग शॉप? कल क्या हुआ था बैंकिंग शॉप, उसके बारे में बताओ। व्हाट अबाउट यस्टरडे, कल के बारे में कुछ बताओगे? व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल क्या हुआ था सर? कल के बारे में क्या बताऊं, कल क्या हुआ था? यू आर एब्सेंट यस्टरडे। टीचर उसको बताया आप कल भी अनुपस्थित थे, आप कल भी अनुपस्थित थे। दैट वाज द डेंटिस्ट सर। क्या बोला? दैट वाज द डेंटिस्ट सर। अरे वो डेंटिस्ट था सर। द डेंटिस्ट डायड। सर को बोल रहा सर वो डेंटिस्ट के कारण हुआ सर। तो बोले अच्छा, तो डेंटिस्ट भी मर गया? डायड मर गया? नो सर, माय टीथ सर। नहीं सर, मेरा दांत सर। अच्छा, मतलब तुम्हारे दांत के कारण डेंटिस्ट पास गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। यू मिस द मैथ्स टेस्ट बैंकिंग शॉप। तुमने अपना मैथ्स टेस्ट मिस किया है, तुमने उसको भी छोड़ दिया बैंकिंग शॉप। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बारे में कुछ कर लूं, बोल रहा है। चलो राइट बोलते हैं, चलो राइट, लाइन अप फॉर पी। चलो ठीक है, चलो हो गया तुम्हारी बातें जो भी हैं। अब चलो पी के लिए लाइन अप हो जाओ, लाइन में खड़े हो, चलो पीटी करना है। कांट सर। फिर बोलता है नहीं कर सकता सर। सकता सर। आप टीचर बोला देयर इज नो सच वर्ड एज कांट बैंकिंग शॉप। दुनिया में नहीं कर सकता जैसा कोई शब्द ही नहीं है बैंकिंग शॉप। तो बैंकिंग शॉप क्या बोलते हैं? नो किट सर। नो किट सर, किट नहीं लाया हूं सर, बोलता है। किट का मतलब समझे क्या होता है? खेल का सामग्री। हाँ, किट खेल का सामग्री नहीं, केवल खेल का सामग्री नहीं। यू हैव किट फॉर योर ऑल दी वर्क्स। अगर तुम गाना बजाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा किट में क्या होगा? तबला, डुग्गी, पियानो, ये सब होगा। क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो बैट, बॉल, स्टंप होगा। हॉकी खेलने जा रहे हो तो हॉकी शूज वगैरह होंगे, टी शर्ट वगैरह होंगे। ये किस चीज के लिए आया है? पीटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए आया है। तो उसमें क्या क्या जरूरी है? जूते, सफेद कपड़े, इन चीजों की आवश्यकता होती है। बोल रहा नो किट सर, मेरे पास तो पीटी करने का कोई सामान नहीं है।
वेयर इज इट? तो वो कहाँ है? होम सर, घर में है। व्हाट इज इट डूइंग एट होम? वो घर में क्या कर रहा है? नॉट आयरन सर, वो आयरन नहीं हुआ है सर। वो couldn't you iron it? तुम उसे आयरन नहीं कर सकते? कांट सर, नहीं कर सकता सर। Why not? क्यों नहीं कर सकते? बैड हैंड सर, मेरा हाथ में चोट है, खराब हो गया, नहीं कर सकता बोल रहे। Who usually does it? अब ये किसने किया बोलते हैं? ग्रैंडमा सर, मेरी दादी अम्मा ने बोला। Why couldn't she do it? अब उन्होंने वो वैसा क्यों नहीं की कर सकती? वैसा क्यों नहीं कर सकती? डैड सर, वो तो मर गई सर, इसलिए नहीं कर सकती। भाई मेरा हाथ में खराबी था तो क्या हुआ भाई? तो बोले ग्रैंड माँ सर। अच्छा, तो ग्रैंड माँ क्यों नहीं कर सकी? मर गए। तो आपने देखा कि टीचर जानते हैं, टीचर knows that the boy is frequently telling the lies and he wants to outwit him, उसको अपनी बातों के जाल में फंसा के उससे सच उगलवाना चाह रहे हैं। But the wittiness of that child, you are seeing that he is making more and more damn excuses. वो इतने ज्यादा एक्सक्यूजेस बना रहा है कि सर उसको किसी प्रकार से बातों में फंसा ही नहीं पा रहे हैं। और इस चीज से आप ध्यान दें कि एक्सक्यूजेस बहुत खतरनाक चीज है। हमको जीवन में बहाने कभी नहीं बनाने चाहिए, उससे हमारे चरित्र में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। That is all about the lesson Excuses by Gareth Owen. Don't sit idle. It's a time to title to be vital. Thanks for watching video. Students, please don't forget